हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंथैल्पी, रिलेशनशिप बिटवीन द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटीज। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम एंथैल्पी से। हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q is equal to delta U plus P delta V, where delta U is the change in internal energy and delta V is the change in volume. Suppose the system is carried out at constant volume. At constant volume, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 वही फाइनल वॉल्यूम है, दैट इज V1। सो जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, दैट इज व्हाई जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये वैल्यू जब हम यहां पर पुट करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो इसके सबस्क्रिप्ट में हम V लिखेंगे, that is equal to delta U plus delta V की जगह पर 0 रखेंगे, that is why QV is equal to delta U. So the heat change at constant volume is equal to the change in internal energy. So यहां से हम change in internal energy को डिफाइन कर सकते हैं। Change in internal energy is defined as the heat change at constant volume. So इस इक्वेशन को हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। At constant pressure, यदि हम constant pressure की बात करें, so this first law of thermodynamics can be written as Qp is equal to delta U plus P delta V. Let this equation number is 2. So suppose the volume changes from V1 to V2, therefore जो change in volume होगा that should be written by the value V2 minus V1, and when the volume changes from V1 to V2, the internal energy changes from U1 to U2. So delta U क्या हो जाएगा, change in internal energy, that is U2 minus U1. Now put these value in this equation number 2. इन values को हम यहां पर put करेंगे। So the QP equation number 2 becomes delta U की जगह पर हम रखेंगे U2 minus U1 प्लस P इंटू डेल्टा V की जगह पर रखेंगे V2 माइनस V1। अब जो फाइनल स्टेज वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, यानी U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ये जो टर्म है U प्लस PV, this is a new term that is called as the enthalpy, which is represented by H, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, U2 प्लस PV2 क्या हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ द फाइनल स्टेट, माइनस U1 प्लस PV1 क्या हो जाएगा, दिस इज एंथैल्पी ऑफ द इनिशियल स्टेट। सो QP is equal to delta H. So we can define the change in enthalpy is defined as the heat change at constant pressure. फिर रिपीट करते हैं, the enthalpy change is defined as the heat change at constant pressure. Now put this value of
put this value of Qp is equal to delta H in equation number 2. Put equation 3 in equation number 2. इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो Qp की जगह पर हमने डेल्टा H रख दिया एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. So change in internal energy is defined as the sum of internal energy change and pressure volume work. Now we will find out the relationship between heat of reaction at constant pressure and that at constant volume. यानी Qp और Qv में रिलेशनशिप डिराइव करना है. हमने अभी डिराइव किया है कि Qp डेल्टा H होता है और Qv that is heat of reaction at constant volume that is delta U होता है. Now from first law we know that Q is equal to delta U plus P delta V होता है. Suppose when the volume changes, when the internal energy changes from U1 to U2, let the volume of the system changes from V1 to V2. Because this is carried out at constant pressure, so it can be written as Qp or it can be written as P into V2 minus V1 because the volume of the system changes from V1 to V2. Or Qp is equal to delta U plus PV2 minus PV1. But we know that for an ideal gas PV is equal to nRT होता है. So इनिशियल स्टेज पर जब वॉल्यूम V1 है तो उस समय ये वैल्यू हो जाएगी N1RT और फाइनल स्टेज पर जब वॉल्यूम V2 हो गया तो उस समय ये वैल्यू हो जाएगी N2RT. Now put this value of PV1 and PV2 in this equation. So the equation becomes Qp is equal to delta U plus PV2 की जगह पर आपने रख दिया N2RT माइनस PV1 की जगह पर रख दिया N1RT और Qp is equal to delta U plus RT into N2 minus N1. अब इसको रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को. Qp इज इक्वल टू डेल्टा U को हमने क्या रखा है Qv रखा है. सो Qv से रिप्लेस करेंगे प्लस N2 माइनस N1 इसको हम लिखते हैं डेल्टा Mg मीन्स द नंबर ऑफ moles of the gaseous product minus number of moles of the gaseous reactant. That value gives the delta Ng into RT, where R is the gas constant and T is the temperature at which the experiment is performed. Where यहां पर हम लिख देते हैं डेल्टा Ng is equal to number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. तो ये वैल्यू क्या देगा डेल्टा Ng देगा. Now we have to talk about the conditions under which the delta H becomes equal to delta U. Conditions under which delta H becomes equal to delta U. ये कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है. नंबर 1, जब number of moles of the gaseous reactant
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट हो जाए, यानी जितने नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स हैं उतने ही गैसियस रिएक्टेंट हो जाए, तो N2 और N1 इक्वल हो जाएगा, यानी डेल्टा Ng 0 हो जाएगा। यदि डेल्टा Ng 0 हो गया तो QP इज इक्वल टू QV के इक्वल हो जाएगा, यानी डेल्टा H बिकम्स इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन, व्हेन there is no gaseous reactant or product, जब कोई भी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ना हो, मींस N2 माइनस N1 यानी डेल्टा Ng क्या हो, 0 हो। अंडर दैट कंडीशन डेल्टा Ng 0 हो जाएगा, और जब डेल्टा Ng 0 होगा तो डेल्टा H बिकम्स इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। एक और कंडीशन है जिन कंडीशन में डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल हो सकता है। वो कंडीशन क्या है, व्हेन देयर इज चेंज इन वॉल्यूम इज 0, ये जो वॉल्यूम चेंज है ये 0 हो, चेंज इन वॉल्यूम इज 0, जब डेल्टा V 0 होगा देन QP बिकम्स इक्वल टू डेल्टा U, यानी QV के इक्वल हो जाएगा, मींस डेल्टा H बिकम्स इक्वल टू डेल्टा U हो जाएगा। सो ये वो तीन कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में डेल्टा H डेल्टा U के इक्वल होगा, या हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर becomes equal to the heat of reaction at constant volume हो जाएगा। तो आइए QP और QV पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं। स्टेटमेंट है, the heat of combustion of methane at constant volume is measured in a bomb calorimeter at 298.2 Kelvin and found to be minus 885389 joule per mole. Find the value of enthalpy change. सबसे पहले तो उसने हमें क्या कहा है, the enthalpy of the combustion of methane. मीथेन गैस की कंबस्शन हो रही है। मीथेन की किसी भी हाइड्रोकार्बन की जब कंबस्शन होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड देता है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर हाइड्रोजन 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन इधर 4 हो गई तो इसको ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। हमें यहां पर दिया हुआ है डेल्टा U दैट इज माइनस 885389 जूल पर मोल। वी हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज। हमने डेल्टा H कैलकुलेट करना है। अब ऐसा रिलेशनशिप ध्यान कीजिए जो हमें रिलेशन देता हो डेल्टा H और डेल्टा U में, और वो रिलेशन क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। R हमें पता है, दिस इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 298.2 केल्विन। डेल्टा Ng नहीं पता है, डेल्टा Ng कहां से निकालेंगे, इस रिएक्शन से। सो डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट। ये तो लिक्विड है, ये गैस फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट हो गए गैसियस 1 मोल माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट 1 मोल है, ये 2 मोल है, तो वैल्यू आ गई -2। अब ये सारी वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए एंड कैलकुलेट द डेल्टा H। डेल्टा U दे रखा है -885389 प्लस
डेल्टा एन जी हमने निकाला -2, आर हमें पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 298.2 केल्विन। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आती है 890,347 जूल पर केल्विन पर मोल। इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स में हम डेल्टा एच यदि डेल्टा यू दिया हुआ हो को कैलकुलेट कर सकते हैं, या डेल्टा एच दिया हुआ हो तो डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम बात करेंगे हीट कैपेसिटीज की। सो सबसे पहले हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature of a system or a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। यानी जब एक गिवन सब्सटेंस का या एक गिवन सिस्टम का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री बढ़ाना है, तो उस 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड एज द हीट कैपेसिटी। सो हीट कैपेसिटी C कैन बी कैलकुलेटेड एज, सपोज Q amount of heat is given when the temperature increases from T1 to T2, or this is equal to Q upon delta T। तो इस तरीके से हम हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। इसी तरह से यदि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of 1 gram of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। यहां हमने स्पेसिफाई किया है कि हम सिस्टम या सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं वो कितना है, दैट इज 1 ग्राम। सो 1 ग्राम सब्सटेंस का जब आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो उस समय जो हीट रिक्वायर होगी दैट इज कॉल्ड एज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी तरह से यदि हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें, मोलर हीट कैपेसिटी होता है द अमाउंट ऑफ heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance through 1 डिग्री सेल्सियस। जब हमें 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है उस समय जो हीट रिक्वायर होगी दैट इज कॉल्ड एज अ मोलर हीट कैपेसिटी। अब ये देखने के लिए कि क्या वाकई तीनों में कोई डिफरेंस है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ए एल्यूमिनियम पीस weighing 3 ग्राम, जब इसका टेम्परेचर जब इसको हम 5.4 जूल हीट सप्लाई करते हैं तो इसका टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज कर जाता है। एक एल्यूमिनियम पीस है जिसका वेट 3 ग्राम है, जिसको जब हम 5.4 जूल हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज कर जाता है। तो
ये जो तीनों वैल्यूज हैं, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। हीट कैपेसिटी दैट इज C इक्वल टू, हीट हमने कितना दिया है 5.4 जूल, और 5.4 जूल देने से टेम्परेचर कितना राइज कर गया 2 डिग्री। लेकिन हमने क्या बताना है, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए हमें हीट रिक्वायर है, तो इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे एंड दिस विल गिव 2.7 जूल। ये हीट कैपेसिटी आ गई। और यदि हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, ये जो हीट हमें देनी पड़ी है, ये 3 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल को 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए हमें देनी पड़ी है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहती है, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस हमने 1 ग्राम के लिए हीट रिक्वायर हमने बतानी है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये हीट रिक्वायर है 3 ग्राम के लिए, 1 ग्राम के लिए क्या होगा, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.9 जूल आ जाएगी। और यदि हमें मोलर हीट कैपेसिटी निकालनी है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। और हमें पता है कि एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 27। सो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने पर हीट रिक्वायर है 0.9 जूल। तो 27 यानी 1 मोल के लिए कितनी हीट रिक्वायर हो गई, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई इसको 27 कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 5.4, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 27। तो इसको 27 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 24.3 जूल। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज। हीट कैपेसिटीज 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होती है, we know that from first law Q is equal to du plus pdv। डेल्टा को हमने d की फॉर्म में लिखा है, एंड we also know that from the heat capacity that is C is equal to Q upon change in temperature that is Tt। Now put this value of Q from this first law in this equation, so C is equal to du plus pdv upon dt। If we have to calculate the heat capacity at constant volume, यानी at constant volume that is dv is equal to 0, means change in volume is 0। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, बिकॉज हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो सबस्क्रिप्ट में v लिखेंगे और du प्लस 0 अपॉन dt और cv इज इक्वल टू du अपॉन dt। सो द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी with respect to temperature. This is what we called as a heat capacity at the constant volume। अब हम बात करेंगे heat capacity at constant pressure की। Second heat capacity, that is heat capacity at constant pressure।
Again, from first law of thermodynamics, we know that Q is equal to du plus PdV and heat capacity C is equal to Q upon dt. Now put this value in this equation. So C is equal to du plus PdV upon dt. Because we are talking about the heat capacity at constant pressure, so it can be written as Cp is equal to du plus PdV upon dt. But we know that enthalpy, that is H is equal to U plus PV. Now differentiate it with respect to T. Differentiate with respect to T. तो ये क्या हो जाएगा? dH upon dt is equal to du upon dt plus P into dV upon dt. Let this equation number is 1 and this equation number is 2. Now rewrite the equation number 1. Equation 1 को फिर से rewrite करते हैं. Rewrite equation 1. So Cp is equal to du upon dt plus P into dV upon dt. Now put this value of du upon dt plus P into dV upon dt from equation number 2 to this equation, and so the Cp becomes equal to dH upon dt. Means heat capacity at constant pressure is defined as the rate of change of enthalpy with respect to temperature. तो Cp और Cv में फिर क्या रिलेशनशिप है ये देखते हैं. We know that Cv is equal to du upon dt and Cp is equal to dH upon dt. Now operate Cp minus Cv, that is dH upon dt minus du upon dt. But we know that H is equal to U plus PV, and for 1 mole of ideal gas PV is equal to RT होता है. ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए. So H is equal to U plus RT. Now differentiate it with respect to temperature T. यानी dH upon dt minus equal to du upon dt plus R into dt upon dt, that is 1. So dH upon dt minus du upon dt is equal to R. Now put this value of dH upon dt minus du upon dt equal to R in the equation number 1. Put this value in equation 1. So क्या हो जाएगा? Cp minus Cv equal to dH upon dt minus du upon dt is equal to R. So this is equal to R. Now this is the relationship between Cp and Cv, that Cp minus Cv is equal to R. अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू की, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं. चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर. इस बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक ये इंसुलेटेड टैंक होता है जिसके अंदर इस टाइप से ये अरेंजमेंट होती है और ये कप होती है जिसमें हमें सब्सटेंस को रखना होता है, और यहां पर इसमें एक फिलामेंट हम लोग क्रॉस करते हैं
ताकि इस सब्सटेंस की बर्निंग हो सके। जब ये सब्सटेंस बर्न करता है तो जो हीट रिलीज होगी वो इस कंटेनर पर जाएगी। इसके बाहर इस टैंक के अंदर पानी है, तो वो हीट कहां रिलीज करेगा? इस वाटर को। हम क्या करते हैं, जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है तो उस समय इसका इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं थर्मामीटर की हेल्प से, और जब ये सब्सटेंस कंप्लीटली बर्न हो जाता है उस समय टोटल राइज इन टेम्परेचर दैट इज T2 नोट कर लेते हैं इस थर्मामीटर की हेल्प से। ये स्टरर है जो इस पानी को स्टर करता रहता है ताकि पूरे जितना भी यहां पर सब्सटेंस वाटर लिया हुआ है उसका टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहे। सो बाय नोटिंग द राइज इन टेम्परेचर we can calculate the change in internal energy with the help of this bomb calorimeter। और वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू राइज इन टेम्परेचर इंटू M अपॉन M, where Q is the heat capacity of calorimeter, delta T is the rise in temperature, कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, यानी इनिशियल यदि हमारा T1 था तो फिर वो कितना इंक्रीज हुआ T2, तो डिफरेंस क्या देगा हमें? राइज इन टेम्परेचर देगा। M इज द molar mass of the substance taken and small m is the mass of substance taken। कितना वेट, कितना सब्सटेंस आपने लिया है वो स्मॉल एम है, और कैपिटल एम क्या होता है? उस सब्सटेंस का मोलर मास क्या है। सो by noting all these four values, we can calculate the change in internal energy। आइए देखते हैं फिर कि change in enthalpy को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। इसके लिए सपोज हमने 100 cc 0.5 नॉर्मल HCl लिया है प्लास्टिक बॉटल में, और दूसरी प्लास्टिक बॉटल में 100 cc 0.5 नॉर्मल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशंस को सेम टेम्परेचर तक आने के लिए हम उन प्लास्टिक बॉटल्स को वाटर में रखते हैं और इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। लेट जो इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन इज T1 डिग्री सेल्सियस। Now mix the two solutions। सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl में ट्रांसफर कर देते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद जो राइज इन टेम्परेचर आता है, फाइनल टेम्परेचर पहले नोट कर लेते हैं। फाइनल टेम्परेचर से T2 डिग्री सेल्सियस आ गया, देयरफॉर राइज इन टेम्परेचर कितना हो गया? राइज इन टेम्परेचर हो गया T2 माइनस T1 डिग्री सेल्सियस। ये इतना टेम्परेचर राइज कर गया। नाउ द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, पहले टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 प्लस 100 दैट इज 200 cc सॉल्यूशन। सो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी वाटर की जो डेंसिटी है दैट इज 0.9987 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। सो जितना वॉल्यूम है लगभग उतना ही मास हो जाएगा, 200 ग्राम। नाउ कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। Heat produced during the mixing of acid and base is equal to the mass into specific heat into rise in temperature। मास हमें पता है कितना है? 200 ग्राम।
specific heat of the solution is equal to the specific heat of the water. ये हमने लेना है, that is 4.184 जूल और rise in temperature है T2 minus T1 डिग्री सेल्सियस. सपोज जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, let it comes out to be x जूल. सो ये जो x जूल जो हीट प्रोड्यूस आई है, ये 100 सीसी 0.5 नॉर्मल HCl की न्यूट्रलाइजेशन से हमें मिली है. सो x जूल हीट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 100 सीसी ऑफ 0.5 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन. लेकिन यदि हमारे पास यही HCl सॉल्यूशन 1 नॉर्मल हो और 1000 सीसी हमने लिया हुआ हो, तब टोटल हीट प्रोड्यूस कितनी आएगी? इन दैट केस द हीट प्रोड्यूस्ड बाय 1000 सीसी 1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू, क्या करें, x को 100 और 0.5 से डिवाइड इनटू 1001 से मल्टीप्लाई. दिस विल गिव द एंथैल्पी चेंज, यानी हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन.